Hi friends, this is SK English Literature online class. Welcome to my class. Today I have come with part 5th of MCQs on Shakespeare works for TGT PGT exam, which are most expected question for upcoming examinations. So friends, let's start and practice. So friend, let's start question number 1. She should have died hereafter द वे टू डस्टी डेथ्स। सो जो ये लाइन्स हैं, दो लाइन हैं, हमें बताना है कि इनमें से इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या नहीं। विच इज़ नॉट ट्रू। ए लेडी मैकबेथ डेथ हैज़ हैपन्ड एट एन अनफॉर्चुनेट मोमेंट। बी मैकबेथ इज फेसिंग ए क्राइसिस हैंस ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिसीव द न्यूज़। मैकबेथ विशेज दैट द क्वीन should have died after some time. D. The whole nation might have mourned her death. So our correct answer is all the above are true. यानी इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसके रेफरेंस में कि जो दो लाइन ऊपर दिए हैं, शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर द वे टू डस्टी डेथ। सो आवर all statements are true. The correct answer is E. All the above are true. So next question is, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage. These words are spoken by Macbeth in Act 5th, Scene 5th. Which is true? So हमें बताना है कि according to these lines which statement is true. So options are A. These words express Macbeth's pessimism and philosophy of the worthlessness of life. B. Life is full of illusions and disillusions. C. Each day that passes on carries us to the grave. D. Such life is entirely worthless and not worth living. C. All are true. So our correct answer is E. All are true. यानी कि all statements are true in reference to the above given lines. So friend, question number 3rd. Whoever loved that loved not at first sight. The line spoken by फेबे। ये above line जो है ये फेबे के द्वारा बोली गई। हमें बताना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई हैं। तो हमारे पास हैं ऑप्शन A has been taken from Sir Philip Sidney. B has been taken from Marlowe poem. C in Shakespeare's own creation. D none of these. So our correct answer is B. Has been taken from Marlowe's poem. यानी whoever loved that loved not at first sight. These lines are taken from Marlowe's poem. Now we come to the next question. So our next question is number 4. The statement, knowest thou the youth that spoke to me erstwhile? Who speak these words and who is the youth referred to? यानी कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है और किसको रेफर की गई है। So options are A. Silvius to Phoebe and the youth is Orlando. B. Phoebe to Silvius and the youth is Rosalind in disguise. C. Rosalind to Orlando and the youth is Orlando. D. Jacques to Rosalind. So our correct answer is B. Phoebe to Silvius and the youth is Rosalind in disguise. So ये लाइन बोली है फेबे के द्वारा सिल्वियस को बोली गई हैं और जो यूथ है वो इसमें रोजालिंड है जो डिस्गाइज में है यानी कि वेश बदल कर। So our next question is 5. Most friendship is feigning, most loving mere folly occurs in a song sung by. We have 4 options: him, Ajax, Touchstone, Amines. So ये बताना हमें कि ये जो लाइन है ये एक सॉन्ग है और ये किसके द्वारा गाया जाता है।
सो आवर आंसर इज अमीन्स। तो अमीन्स के द्वारा ये सॉन्ग गाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी दी लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय। हमें बताना है कि स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए रोजालिंड, बी डूक सीनियर, सी सीलिया, डी द क्लाउन। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी डूक सीनियर, यानी कि ये लाइन एज यू लाइक इट प्ले में डूक सीनियर के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विचेज आर इक्विवोकेटर्स। दिस मीन दैट द विचेज वर ए false in their prophecies, B ambiguous in their saying, C extremely truthful, D very kind in their dealing. So क्वेश्चन है द विचेज आर इक्विवोक्टर्स। तो विचेज मीन्स चुड़ैल होता है, इक्विवोक्टर्स कहते हैं जो समान होते हैं बराबर। तो हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट द विचेज वर। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर एम्बिगियस इन देयर सेइंग, यानी कि एम्बिगियस मीन्स होता है जो डाउटफुल होता है, सेइंग यानी कि विचेज वर एम्बिगियस इन देयर सेइंग, अपनी जो कहावत में वो जो है विचेज डाउटफुल थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मैं इसे लेट मी एक्सप्लेन। विचेज की भविष्यवाणी यहाँ अनेक अर्थ प्रकट करने वाली थी, इसलिए विचेज को इक्विवोकेटर कहा गया है, यानी कि जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर कहने वाला उसे इक्विवोकेटर कहते हैं, घुमा फिरा कर बोलने वाला। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द डेथ ऑफ मैकबेथ। हमें बताना है कि जो विद द डेथ ऑफ मैकबेथ की क्या होता है। ये ऑप्शंस हैं ए फ्लिंस कम्स टू द थ्रोन, बी द विचेज डाई, सी मोरल ऑर्डर इज रेस्टोर्ड, डी मैकडब इज एबल टू मीट हिज फैमिली। यानी कि विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, जब मैकबेथ की डेथ होती है उसके साथ साथ आगे की जो घटना है वो क्या होती है। तो हमारा सी इज आवर करेक्ट आंसर, मोरल ऑर्डर इज रेस्टोर्ड, यानी मैकबेथ की डेथ के बाद जो मोरल ऑर्डर है, नैतिक जो व्यवस्था है वो वापस मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि नैतिकता की जो व्यवस्था है वो पुनः स्थापित हो जाती है और मैकबेथ का जो अराजकतापूर्ण शासन है वो समाप्त हो जाता है। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बिरनाम वुड कम टू डंसिनेल हिल। कि जो बिरनाम वुड है वो डंसिनेल हिल तक कैसे आता है। सो आवर ऑप्शंस आर ए द वुड स्टार्ट वॉकिंग, बी द ब्रांचेज हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज, सी द विचेज लिफ्ट द वुड, डी सोल्जर्स कट ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज एंड मार्च फॉरवर्ड विद द ब्रांचेज। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर, कि जो सोल्जर्स हैं वो पेड़ों की शाखाएं काट करके उनके पीछे छुपकर आगे आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि पेड़ जो बिरनाम जो वुड है वो कभी चल नहीं सकता। सो लेट मी एक्सप्लेन। वास्तव में बिरनाम का जो जंगल है डंसिनेल की पहाड़ी तक चलकर नहीं आया, बल्कि सैनिकों ने पेड़ों की शाखाओं को काटा और उनके अपने साथ लेकर आगे बढ़े। मैकबेथ को ऐसा लगा कि जैसे जंगल चल पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द विचेज प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हेल्थ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। सो आवर ऑप्शंस आर ए दैट ही विल रूल द किंगडम, बी दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, सी दैट ही विल बी लेस ग्रेट एंड हैप्पी देन मैकबेथ, डी दैट ही इज मेयर फॉयल टू मैकबेथ। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग, यानी कि जो विचेज की जो प्रोफेसी थी बैंको को वो ये थी कि उसके बच्चे आगे चलकर राजा बनेंगे, यानी तीनों विचेज ने बैंको से कहा था कि उसके बच्चे राजा बनेंगे। सो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकबेथ अटर्स द सोलिलोक्यू लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। यानी मैकबेथ जो है एक सोलिलोक्यू बोलता है, वो सोलिलोक्यू है कि लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो। वहन यानी कि कब, वो हमें बताना है कब वो ये सोलिलोक्यू स्पीच करता है। सो ऑप्शंस हैं ए बिरनाम वुड कम्स टू डंसिनेल, बी मैलकॉम एंड शेवर्ड एंटर द कैसल, सी लाइफ हैज लॉस्ट ऑल जेस्ट फॉर हिम,
after the death of Lady Macbeth when he comes to know that Macbeth was not woman born? So our answer is C. Life has lost all zest for him after the death of Lady Macbeth. यानी कि लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद जब उसके लिए जीवन बिल्कुल शून्य हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई जीवन में कोई आनंद नहीं रहता, तो तब वो ये बात कहता है कि लाइफ बट ए वॉकिंग शैडो. सो लेट मी एक्सप्लेन. सी इज करेक्ट आंसर. एट द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ he thinks that is inevitable and as such life has no meaning in it. So our next question is, where is Duke Senior staying after being deposited of his kingdom? यहाँ पे पूछा गया है कि डूक सीनियर जो है कहाँ ठहरता है जब उसको अपने राज्य से निकाल दिया जाता है. So our options are A in Birnam Wood, B in a rented house in London, C in the forest of Arden, D in exile in Scotland. So C is our correct answer, in the forest of Arden. यानी कि डूक सीनियर जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर के शरण लेता है. सो लेट मी हिन, जब अपनी गद्दी से हटता है डूक सीनियर तो फॉरेस्ट आर्डन के फॉरेस्ट में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, नेम हिज किंगडम. हमें बताना है कि रोजालिंड जो है वो ड्यूक सीनियर की पुत्री है और उसके राज्य का नाम क्या है. नेम हिज किंगडम. सो ए जैक्स, बी ओलिवर, सी ओलैंडो, डी फ्रेडरिक. तो ड्यूक सीनियर का जो नाम है वो है फ्रेडरिक. लक्ष्मी स्पिन रोजालिंड की चचेरी बहन सीलिया के पिता हैं तो उनका नाम है फ्रेडरिक था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्ले एज यू लाइक इट जैक्स इज, यानी कि एज यू लाइक इट प्ले में जो जैक्स है वो क्या है हमें बताना है. ए साइनिक, बी ए कॉमिक कैरेक्टर, सी ए रेसलर, डी ए रूलर. सो आवर आंसर इज ए साइनिक. यानी कि एज यू लाइक इट प्ले में जैक्स जो है एक साइनिक है. साइनिक का मतलब होता है कि जो दूसरों में दोष देखता है. नाटक में जो जैक्स है वो एक साइनिक है, दोषदर्शी, यानी जो सब में दोष निकालता है उसे साइनिक कहते हैं. वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वालिटी conscience of Macbeth is revealed in. So options are the porter scene, the banquet scene, the sleepwalking scene, D the second meeting with the witches. So our correct answer is B the banquet scene. यानी कि जो गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ, यानी गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ रिवील, यानी कि मैकबेथ के अंदर जो है अपराध बोध की भावना जो दिखाई देती है वो कब दिखाई देती है, वो दिखाई देती है बैंकेट सीन में. यानी मैकबेथ का अपराधपूर्ण जो अंतःकरण है इंटरनल वो बैंकेट सीन में प्रकट होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वाज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ. सो मैकडफ जो है मैकबेथ को मारने में कामयाब हो जाता है इसके बावजूद कि प्रोफेसी जो विचेस ने जो प्रोफेसी दी थी कि उसको कोई मार नहीं सकता, उसके बावजूद भी मैकबेथ की हत्या हो जाती है. लेकिन और मैकडफ उसको मारने में सफल हो जाता है. तो क्या कारण था, वाई? सो हमारे ऑप्शंस हैं ए ही किल्ड द विचेस फर्स्ट, बी ही रिसीव्ड ए चार्म फ्रॉम ग्रिंसविंडल, ही वाज ए वेरी पावरफुल वॉरियर, डी ही वाज बोर्न बाय सीजेरियन सेक्शन. सो और करेक्ट आंसर इज ही वाज बोर्न बाय सीजेरियन सेक्शन. मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि विचेस ने जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार कि मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैकबेथ का जन्म उसकी माँ के पेट को काटकर ऑपरेशन से हुआ था. मैकबेथ को इसलिए कोई नहीं मार सकता था. लेकिन मैकबेथ जो नेचुरल बोर्न हुआ हो उसके द्वारा मैकबेथ की हत्या नहीं हो सकती थी. लेकिन मैकबेथ जो था वो सीजेरियन बोर्न था, नेचुरल बोर्न नहीं था, इसलिए वो ही वाज बोर्न बाय सीजेरियन सेक्शन. डी इज अवर आंसर. सो मैकबेथ किल मैकबेथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम, हाउ डिड बिरनाम वुड कम टू रंचिनेन इन द शेक्सपियर मैकबेथ. सो ये दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी इसको मैं बताता हूँ. पहले ऑप्शन है द विचेस कैरीड इट देयर, बी द फॉल वेदर कोल्ड एंड अपीवल, सी मैलकम्स आर्मी मास बिहाइंड हिज कट ब्रांचेस,
D. Through an exchange for land after victory. तो C is our correct answer. मैल्कम की जो आर्मी है वो पेड़ों की शाखाओं को काटकर उनके पीछे पीछे चलती है और वो डनसिनेन तक पहुंच जाते हैं। दैट मी एक्सप्लेन, जंगल चलता नहीं है परंतु मैल्कम के सैनिकों ने वृक्षों की शाखाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा कि जैसे वियतनाम का जंगल चल रहा है। तो ये है सोलिलोक्यू थी। मैकबेथ अपनी पत्नी के जो मृत्यु के समाचार के बाद उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकबेथ अटर इज सोलिलोक्यू टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। तो जो मैकबेथ है ये अपनी सोलिलोक्यू में कहते हैं कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। तो कब कहता है वही बताना है। ऑप्शंस आर ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकबेथ, बी ही रिसीव द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ, सी वियतनाम वुड कम टू डनसिनेन, मैल्कम एंड स्टीवार्ट एंटर द कैसल। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। जब लेडी मैकबेथ की हत्या हो जाती है, वो मर जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो तब ये अबव लाइन जो सोलिलोक्यू है वो मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। ही रिसीव द न्यूज ऑफ द लेडी मैकबेथ डेथ, यानी कि लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद वो ये लाइन बोलता है। So our next question is, she is too subtle for thee, and her smoothness, her very silence and her patience speak to the people and they pity her. Who speak the lines and about whom? हमें बताना है ये लाइन कौन बोलता है और किसके बारे में बोलता है, किसको बोलता है। सो अब ऑप्शन है नंबर 1 द क्लाउन अबाउट रोजालिन, बी जैक्स अबाउट सीलिया, ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट रोजालिन, ड्यूक सीनियर अबाउट सीलिया। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये लाइन बोलता है ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड के बारे में। सो एक्सलेट में एक्सप्लेन, ये सब रोजालिंड के बारे में ड्यूक फ्रेडरिक अपनी पुत्री से कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। ये लाइन किसके द्वारा गाई गई है। दीज सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई, हमें बताना है ए आमीन्स, बी फेबे, सी सिल्वियस, डी जैक्स। सो आवर करेक्ट आंसर है ए आमीन्स, यानी कि ये लाइन जो है ये सॉन्ग है अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी आर संग बाई आमीन्स इन एज यू लाइक। So friends, this was our today's video. So I hope you have liked this video. If you have liked this video, please share, like and subscribe. And if you have any doubt or queries, write in comment box and soon I will come to you with a new video on Shakespeare's work. Thanks for watching my video. Have a nice day.